It became one of the country's biggest stories. It went viral across all media platforms just over 3 months ago, and I don't even need to remind you, viewer, about how a Porsche Taycan supercar driven by a 17-year-old VIP brat fatally crashed into two young IT engineers, Ashwini Koshta and Anish Awadhia, killing them instantly. Well, the 17-year-old shameless coward who was driving the car, his car was obviously seized, but so was his passport. And now, over 2 months after this coward received bail from the Bombay High Court, he and his family want the car back, and they want his passport also back. That is the height of entitlement and arrogance this family enjoys. Take a look at the latest. 102 days ago, these two young engineers died a terrible death on Pune's roads. Ashwini and Anish fatally mowed down by a speeding Porsche, driven by the drunk, underage son of a real estate tycoon. And now, just over 3 months later, with justice still far from being served, a shocking act of VIP arrogance. The 17-year-old accused, living a free life after being granted bail, has now approached the Juvenile Justice Board asking for the return of his Porsche car and passport, both seized in May as part of an ongoing police investigation. India Today has learnt that the teenager's defense lawyer Prashant Patil had submitted an application requesting the return of the passport and vehicle. Shockingly, the teenager's legal team has argued that since the boy is on bail, and since he has written the famous 300-word essay he was asked to write to secure initial bail, and since he has completed a court-ordered road safety course, hence the luxury car worth 2.5 crore rupees currently held by the police should be returned to him along with his passport. A decision on the matter was initially scheduled for this week, but due to an adjournment, the Juvenile Justice Board is now expected to issue a verdict on September the 26th. 2 months ago, after spending just a few weeks in a juvenile observation home, the Delhi High Court granted the teenager bail, shockingly noting the teenager's personal trauma in the incident. The case, brought under the national spotlight by India Today's coverage, has been an uninterrupted list of VIP actions, entitlements and manipulations of the law. From bribery to MLA muscle power to criminal switching of blood samples to the dadagiri of a powerful family. The application for the return of the teenager's Porsche and passport is only the latest slap in the face of the quest for justice. With Omkar Wable in Pune, Bureau Report, India Today. So the teenager who was driving an unregistered Porsche without a driving license, drunk, his parents switched the blood samples, he was able to get out of the juvenile observation home after writing a 300-word essay, he got bail from the Bombay High Court which acknowledged his personal trauma, his parents continue to be in jail, but this coward in the images, the boy who was driving the car, killing young Ashwini and Anish, he is breathing free air, and now he has filed an application through his lawyer wanting the vehicle back, saying, agar investigation khatam ho gaya, to please give me back my car. And he also wants his passport back. The passport, of course, was also seized right at the start, making one wonder, why does he want his passport back? Is it time for a foreign vacation for this coward? Well, you don't need to hear it from me. Let's get in the voices of the people who matter, the parents of the victims. Suresh Koshta is Ashwini Koshta's father, the young woman who lost her life. Om Prakash Awadhia is the father of Anish Awadhia, the young man who lost his life. Suresh ji, आपसे मैं पहले आऊंगा. 100 दिन हो गए सुरेश जी, 100 दिन हो गए और अभी रिपोर्ट सामने आ रहे हैं. आपको बेहतर पता है कि क्या क्या हुआ है इस केस में, हम भी ट्रैक कर रहे हैं रोज, और आपको पता है कि लेटेस्ट जो सामने आया है सुरेश जी वो ये है कि लड़के ने एक एप्लीकेशन जारी किया है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने और ये बोला है कि अगर आपका इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया है तो ये गाड़ी आप वापस कर दो और मेरा पासपोर्ट भी जो आपने ले लिया हाथ में वो भी वापस कर दो.
आपका रिएक्शन क्या है सुरेश जी इस पर? सबसे पहली बात तो ये गाड़ी है किसकी? लड़का कैसे बोल सकता है कि मेरी गाड़ी मेरे को वापस कर दो? मेरे को जहां तक नॉलेज में आया है कि गाड़ी शायद ब्रह्मा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा कुछ नाम उसकी करेक्ट। है। तो फिर उन ये क्या वकीली पॉइंट है ये? दरअसल में ये वकीली पॉइंट है। वकील ने सलाह दी कि ऐसा ऐसा एप्लीकेशन लगा दो, पासपोर्ट वापस ले लो, और फिर आप घूमने के बाद फिर कोर्ट से जो है ना बाहर जाने की परमिशन ले लो। और जैसा हम्म। मेरे हीरे साहब जो अपने सरकारी वकील जो है उनने भी बोला है, यदि इनको जमानत मिल गई तो ये तो विदेश भाग जाएंगे, पक्की जी। बात। तो वैसे ही इनको पासपोर्ट मिल जाएगा। बाई द वे कोर्ट यदि पासपोर्ट इनको दे देती या दिला देती है, तो फिर इस बात की गारंटी कौन लेगा कि ये जब भी केस की सुनवाई होगी हाजिर होंगे? इस बात की गारंटी कौन लेगा? कौन लिख के देगा? क्या पुलिस लिख के देगी कि हाँ दे दो इनका पासपोर्ट, कार छोड़ दो इनकी कार? कौन लिख के देगा? कौन गारंटी लेगा कि ये विदेश यदि घूमने गए तो वापस आ ही जाएंगे? हम्म। कौन गारंटी लेगा? जैसा कि इस केस को जो है ना ऑल ओवर इंडिया तो छोड़ो, ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहा है। तो करेक्ट। जो ये ये हिंदुस्तान की जो न्याय व्यवस्था के ऊपर जो है ना बाहर भी क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं कि दो हम्म। 300 शब्द का वर्ड लिख दो, 2 लोगों की जान ले लो, नाबालिग को तो क्या हुआ? मेरे को इस बात पे ऑब्जेक्शन नहीं है, एक्सीडेंट होते हैं, मगर ये जिस तरीके से एक्सीडेंट किया गया, पहले शराब पी गई, उसके बाद 200 की रफ्तार से गाड़ी दौड़ाई गई, तो ये तो फिर हीनियस क्राइम हुआ ना अरे नहीं, मेरे और हिसाब से। सिर्फ ये नहीं सुरेश जी, एक्सीडेंट के बाद या आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक्सीडेंट्स होते हाँ, हैं, नहीं लेकिन उसी पर आ रहा एक्सीडेंट था, के मैं उसी पहले, पर आ रहा था। ये एक्सीडेंट के शुरुआत है, ये पहले और शुरुआत। एक्सीडेंट के बाद जो हुआ है, एक्सीडेंट के बाद हाँ, जो हुआ है। बात जो हुआ है फिर उसी वजह से तो ये सबके सब जेल में हैं। जी। ब्लड सैंपल बदल रहे हैं, तो ड्राइवर के ऊपर आरोप मरने की कोशिश कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे। तो इन सबको यदि जमानत मिलती है या पासपोर्ट मिलता है या गाड़ी मिलती है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि जी हाँ दे दो बिल्कुल। पासपोर्ट? कोई ओम प्रकाश जिम्मेदार जी, व्यक्ति होना चाहिए ना। बिल्कुल। या फिर ओम कोर्ट प्रकाश जी, कोर्ट ऐसा। इस लड़के को अपना पासपोर्ट वापस करने के लिए बोल रहे हैं। गाड़ी दे दो जी वापस, पासपोर्ट दे दो वापस, वो बोल रहे हैं। जी आपका क्या रिएक्शन है सर, ओम प्रकाश जी, इस पे? सर, हम तो जहां तक जानते हैं कि इन्हें किसी तरह से दिया नहीं जाना चाहिए। यदि इन्हें पासपोर्ट वापस दे दिया गया तो ये क्या है, जैसे नीरव मोदी और विजय माल्या और लोग सब बाहर चले गए, फॉरेन वगैरह चले गए, उस तरह से ये भी निकल जाएंगे। बड़े आदमी है सर, कमी हम्म। किसी चीज की है नहीं, ये निकल ही लेंगे। आप ये मान के चलिए सर, एक्सीडेंट करने के 24 घंटे नहीं गुजरे, मतलब बच्चों का ब्लड सूख नहीं पाया और ये लोग खेल खेलना शुरू कर दिए, मतलब पैसे का खेल। आप समझ सकते हैं, ये पूरे इंडिया की पब्लिक देखिए, सबको इतने देखा है ये चीज कि किस तरह खेल खेला गया है इस चीज में। जी। इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप ही समझिए, पब्लिक समझिए कि इन्हें न्याय के पूर्ण है कि नहीं। ये न्यायपूर्ण तो नहीं है ना कि इन्हें आपने सब कुछ दे दिया जाए, बरी होकर निकल लेंगे, ऐसे में भाग लेंगे तो कैसा करेंगे बताइए। और ओम प्रकाश जी, ये भी जी तो सच है कि जैसे आपने बताया कि ये जो केस है वो पूरा जी पब्लिक में है, ये पूरा मीडिया जी अटेंशन के सामने ये सब चल रहा है, तो ये लगता सर है कि मीडिया, इस परिवार को का कोई डर ही नहीं है, कोई डर ही नहीं है कानून से। सर डर तो अब खैर, अब डर तो है, अब ऐसा नहीं है डर नहीं है, डर अब है। लेकिन क्या है, जिस तरह से पहले चला इसे मीडियम, जिस तरह सोशल मीडिया हर जगह चला है, ऑल इंडिया लेवल पे है। मैंने देखा वॉइस ऑफ अमेरिका वगैरह में सभी जगह बताया गया, तो हर जगह इसका है। तो खौफ तो है अब इनको, शुरू में नहीं था इनको खौफ की है, इनको मालूम था पैसे हम सब कुछ कर लेंगे। अब करके दिखा, अब नहीं कर पाएंगे। हमें न्यायपालिका में पूर्ण विश्वास है, हमें अच्छी तरह पता है कि हो सकता है इन्हें न दिया जाए, जो इन्होंने मांग कर रहे हैं इसको नहीं मिलेगा मेरे हम्म। हिसाब से। जी अभी तक ओम प्रकाश जी, जो जी जो जो फेवर्स मिले हैं इस लड़के को, उनके परिवार को, उनका जी पर्सनल ट्रॉमा को बोलकर उनको बेल भी मिल गया दिल्ली हाई कोर्ट से। आपका भी विश्वास क्या है न्यायपालिका पे कि इसको अपना गाड़ी और पासपोर्ट नहीं मिलेगा वापस? क्या आपको विश्वास है? नहीं, हमें विश्वास तक नहीं मिलेगा, लेकिन अब
पैसे वाली पार्टी, बड़ी पार्टी, अब कुछ कहने हम नहीं कह सकते। बाकी जो ऐसा है, न्यायपालिका में विश्वास है कि नहीं देगा? नहीं देगा आपको? सुरेश जी, आपको विश्वास है कि नहीं मिलेगा उसको? मेरे को तो विश्वास न्यायपालिका के ऊपर पूरा है कि वो न्याय करेगी, और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आज पासपोर्ट मांग रहे हैं, कल बाहर जाने की परमिशन मांगेंगे, फिर वापस लाने की गारंटी किसकी है? लेकिन तो जहां मेरे तक को नहीं मेरे को लग रहा लग है रहा है, कि न्यायपालिका जो है, क्योंकि न्यायपालिका को भी पता है जितने लोग न्यायपालिका में बैठे हुए हैं वो भी वॉच कर रहे हैं कि पूरी दुनिया पर जितने लोग इसमें हैं, अटैच हैं, चाहे वो सरकारी वकील हो, चाहे कमिश्नर साहब हो, या फिर अपना जी शिंदे साहब हो, जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, मतलब, जी तो सारे लोगों के ऊपर नजर दुनिया की टिकी हुई है, किसका क्या रिस्पॉन्स है। तो मेरे को नहीं लगता जिम्मेदारी कोई लेगा और इनको पासपोर्ट और गाड़ी मिलेगी। लेकिन लेकिन ओम प्रकाश जी, जी मेरा एक सवाल ये है, देखिए कि जी अगर परिवार को गाड़ी वापस चाहिए तो मतलब एक लेवल पे हम समझ सकते हैं, ठीक है, चलो गाड़ी उनको वापस चाहिए, लेकिन जी पासपोर्ट एक ऐसी चीज है जो सिर्फ एक काम के लिए है। ये पासपोर्ट तो आप समझ सकते पासपोर्ट हैं। और कोई काम नहीं कर सकता है, वो सिर्फ फॉरेन नहीं जाने के लिए काम आता है ना? तो आप भी ये समझ सकते हैं, आप भी ये समझ सकते हैं कि पासपोर्ट मांग रहा है कि इसका मतलब क्या है, ये दुनिया हम्म जानती है। आप पासपोर्ट दे दें, निकल लेंगे, फिर भुलाते रहो आप, फिर चलता रहेगा, हम लोग परेशान होते रहे पब्लिक के लिए, क्या करें हम्म बताइए? ये तो समझ में आता है। जैसे 22 तारीख को इन्होंने कैंसिल किया, हमने सुनने में आया, न्यूज कम देखा था मैंने, 6 लोगों की इन्होंने बेल कैंसिल की है 22 तारीख को। जी। तो वैसे में लग रहा है कि हो सकता है इसमें भी इन्होंने कैंसिल ही करेंगे, इन्हें नहीं देंगे पासपोर्ट वगैरह, नहीं देंगे, मेरे को नहीं लगता है। ओके। जी सुरेश जी, जो हाँ जो जी, हाँ मीडिया जी। मीडिया प्रेशर को लेकर जो कार्यवाही की गई है, वो तो आपने देखा ही है, और हम हाँ 100 दिन के बाद भी हम इस स्टोरी पे अडिग हैं, हम इसी पे रिपोर्ट भी कर रहे हैं, रोज हम जी अपडेट देते हैं हम हमारे ऑडियंसेस को। लेकिन जी। अभी भी थोड़ा लगता है कि सिस्टम काम नहीं कर रहा है। क्या आपको भी यही लगता है, नहीं, या आपके पास अब विश्वास है कि कुछ होगा? कि अभी जो नहीं अग्रवाल नहीं। फैमिली है, कुछ लोग जेल हाँ में हैं, कुछ लोग बाहर हैं, हाँ। तो आपका क्या राय है? अब मेरी राय तो ये है कि सिस्टम शुरू में जरूर थोड़ा सा ढीला रहा है, मगर आज के डेट में तो जनता का दबाव, मीडिया तो खैर मीडिया ही जनता है, जनता ही मीडिया है, तो इतना दबाव है कि कोई भी आदमी गलत करने की तो सोच भी नहीं सकता, क्योंकि जिसने भी इस केस में हाथ डाला है वो नपा है, चाहे वो अपना ये सही है। एएसआई वहां के जो तुरंत स्पॉट पर पहुंचे थे वो भी, डॉक्टर जो 4 लोग जी इन्वॉल्व हो गए थे वो भी, हम्म मतलब जो भी हाथ डाल रहा है, तो अब हाथ डालने का अपने हाथ कोई नहीं जलाएगा, हम्म क्योंकि कमाई करने के तो बहुत से तरीके हैं, एक केस में नहीं कमाएंगे तो 100-200 केस और पड़ेंगे उनमें कमा लेंगे, मगर हम्म इस केस में अब कोई हाथ मेरे को नहीं लगता कोई डालेगा। ओम प्रकाश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे कि इसके अलावा कुछ और होना चाहिए कार्यवाही में, इन्वेस्टिगेशन में? कुछ कुछ ऐसा है कि नहीं हो रहा है जो आप हाईलाइट करना चाहते हैं? सर, ये तो सही चीज है। देखिए, जो इसमें हो रहा है, समय के साथ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। न्याय मिलेगा, आज नहीं कल मिलेगा ना। लेकिन एक चीज मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जैसे बोला गया था कि जो इस तरह कृत्य करता है, जो शराब पी करके चलाता है, कई चीजें रहती है, तो उसमें बालिग का कैसे चले, इस चीज के लिए नियम कायदा जो है बनाना चाहिए, जो नियम बनना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब इंडियन गवर्नमेंट जो बना सकती है, उनको सिस्टम पे बनाना चाहिए इसको, ताकि आने वाले समय में कोई बच्चा जो है इस तरह कार्य ना कर सके, और फिर वो नाबालिग का फायदा उठा कर बाहर आ जाए, जैसे इसमें हुआ। इसके लिए भी कई बार मांग करती गई है, हम लोगों ने मांग किया है कि बालिग केस चलाया जाए, लेकिन वो सिस्टम में कहीं दिक्कत थी, इसलिए नहीं हो पा रहा है वो। और सुरेश जी, आप हेलो, अभी भी हेलो, आप कहते हाँ हैं कि ये जो हाँ। लड़का है, मैं भी, जो हाँ गाड़ी मैं चला भी, रहा था, उसको ही शुड बी ट्राइड एज एन अडल्ट, उसको हाँ अडल्ट समझकर उसको ट्राई करना है। ये तो होना चाहिए, और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हीनियस क्राइम मीन्स किसी भी तरीके से उस किसी भी व्यक्ति की कोई जान लेता है,
16 साल से लेके 18 साल तक, ऐसा नियम भी है, मेरे को जहां तक नॉलेज है ऐसा नियम भी है, 16 से 18 साल के बीच का कोई भी बालक यदि किसी की जान लेता है या लेने की कोशिश करता इसमें है या नहीं किया उसी के उसके कृत्यों से यदि किसी की जान जाती है तो वो हीनियस क्राइम है और जी उसको एडल्ट ही ट्रीट करना चाहिए। और साथ ही उसके चूंकि 18 से कम है, अभी वो 18 से कम है, एडल्ट ट्रीट तो किया जाए और 18 से कम होने के कारण उसके माँ बाप के ऊपर भी कार्रवाई की जाए कि उसने अपने बालक का पालन पोषण जो है ना सही तरीके से नहीं किया, जिससे उसने अपराध किया। तो ऐसा कानून में बनना चाहिए, या है तो उसका पालन सही तरीके से होना चाहिए। मेरे को थोड़ा सा ये डाउट है कि पालन सही तरीके से नहीं हुआ। बच्चे को तो बोल दिया कि वो क्या बोलते हैं, वो उसको मानसिक ट्रॉमा में है, उसको मानसिक आघात पहुंचा है। अरे हम आज आप बता रहे पूरे 100, हम तो दिन भी नहीं गिन रहे, हमको तो रात और दिन का पता ही नहीं चल रहा है, हम रात हो बिल्कुल रही है कि दिन हो रही है, खाना खा रहे हैं, रो रो के खाना खा रहे हैं। मानसिक ट्रॉमा में हम हैं, वो बालक है जिसने हमारी बेटी को मार डाला। यानी हमारे आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं, उसके आंसू पहुंचने वाले मिल गए उसको, तो मानसिक ट्रॉमा में है। जी जी, बहुत सही। जो जान ले रहा है उसको सिंपैथी मिल जाती है, हमको सिंपैथी नहीं मिलती है। ये सुरेश सर्विस जी इसमें जी जी ओम प्रकाश जी अरे इसमें मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे इन्होंने बोला था उसके लिए क्या हो गया। सुरेश जी और ओम प्रकाश जी, मैं लास्ट में एक चीज बताना चाहता हूं आप दोनों को, आपके परिवारों को, कि जी जी जस्टिस पाने तक हम आपके साथ रहेंगे और इस हमें स्टोरी भी को धन्यवाद। हम जी नहीं छोड़ने वाले हैं। इस स्टोरी को हमने ही हाईलाइट किया जी था और हम नहीं हटेंगे इस स्टोरी से। ये मेरा एक जी प्रॉमिस है आपको, वादा देता हूं जी आपको। और हमसे सर मैं जुड़ने के लिए जी जी हाँ जी बोलिए। बहुत धन्यवाद हमसे नहीं जुड़ने के लिए, ओम नहीं प्रकाश सर, जी और सुरेश जी। मैं ये मैं ये कहना जी ओम चाहता हूँ प्रकाश कम जी से कम जी कि ऐसा 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 निर्णय आए इस पे, ताकि समाज में मैसेज जो है सही जाए। नहीं तो समाज में क्या है कि गलत ना मैसेज जाए। हम हम ये चाहेंगे हम समाज में मैसेज अच्छा जाए, इसलिए ऐसा करना चाहिए। हम इंश्योर करेंगे, हम अपना वादा देते हैं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी और ओम प्रकाश जी हमसे जुड़ने के लिए। ठीक थैंक ठीक यू। नमस्कार।